Hello everyone, my name is Ruchi. I am MPhil in mathematics and vast experience of teaching. Welcome to my channel Reckon Classes. Today I have prepared a lesson on compound interest for CAT examination. Let's start. Compound interest. सबसे पहले ये समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है. सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास प्रिंसिपल हर साल के लिए सेम रहता है. But in compound interest, the interest for the first interval is added to the principal and this amount become the principal for the second interval and so on. And the difference between the amount and the money borrowed is called the compound interest for the interval. अब इसका फॉर्मूलाज देखते हैं. Let principal equal to rupees P and rate of interest is R% per annum and time equal to n years. So amount equal to P 1 plus R upon 100 power n या t time. This is the amount. And compound interest equal to amount minus principal means compound interest equal to P 1 plus R upon 100 power n minus P, and this is the formula for the compound interest and this is for the amount. अब ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट केस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. सेकंड केस में क्या होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड करें, अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, then in this case rate equal to R by 2% half yearly and time equal to 2 times 2n half years. तो इस केस में हमारे पास अमाउंट हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 2 अपॉन 100 पावर 2n. क्लियर, जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड हुआ. एंड थर्ड केस व्हेन इंटरेस्ट is compounded quarterly. Then in this case rate equal to 1/4 हो जाएगा, means R by 4% quarterly and time equal to 4n, 4 टाइम्स हो जाएगा क्वार्टर ईयर, 4 क्वार्टर ईयर्स. So in this case amount equal to P 1 plus R upon 4 upon 100 and times 4n. मीन्स जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा तो रेट आधा और टाइम डबल हो जाएगा. जब क्वार्टरली कंपाउंडेड होगा तो रेट 1/4 और टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज डेप्रिशिएशन ऑफ वैल्यू. जब वैल्यू डेप्रिशिएट होती है मतलब डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए किसी की वैल्यू आज 10,000 है और ईयरली वो 10% एप्रिशिएट हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, डेप्रिशिएशन हो गया उसका. तो डेप्रिशिएशन वैल्यू
अगर हम निकालें तो डेप्रिशिएशन ऑफ वैल्यू, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अमाउंट होगा, जो मतलब बाद वाला आएगा, डेप्रिशिएट वैल्यू आएगी, मतलब हम इसको डी लिख देती हूँ मैं इसको, डेप्रिशिएट वैल्यू। तो डेप्रिशिएट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा जितना भी टाइम के लिए दिया है। तो ये हमारे पास डेप्रिशिएट वैल्यू का फॉर्मूला आ गया है। नाउ चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड on a certain sum for 2 years at 10%, the amounts become rupees 605. Find the principal. Now in this case, time is given 2 years, rate of interest 10%, and amount equal to rupees 605, और हमें principal find out करना है। So we know that formula for the amount equal to principal 1 plus r upon 100 t. This gives, substitute all the values, so we get 605 equal to p 1 plus 10 upon 100 power 2. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. This gives 605 equal to p 11 upon 10 power 2. This gives p equal to 605 into 100 upon 121. 11 से कैंसिल किया तो 11 टाइम्स एंड 55, और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स. So this gives p equal to rupees 500, and this is our answer. Example number second, if the difference between CI and SI on a certain sum of money is rupees 72 at 12% per annum for 2 years, then find the amount. So here given CI minus SI equal to 72 rupees, and rate of interest equal to 12% per annum, time equal to 2 years. Let principal equal to P. So first we know that formula of simple interest equal to PTR upon 100, and this gives P into T equal to 2 years, R equal to 12 upon 100, and this gives 24P upon 100, and this is equation number 1. Now CI equal to principal 1 plus R upon 100 T minus P. So this gives P 1 plus R 12 upon 100 into 2 minus P. This is CI, and this gives CI equal to P 112 upon 100 square minus P. So this is equation number second. Now according to question, CI माइनस SI इक्वल टू 72 रुपीज़ 72, तो हम इन दोनों को माइनस कर लें, मीन्स सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करें, देन वी हैव P 112 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस P, दिस इज CI माइनस SI 24P अपॉन 100 इक्वल टू 70. इसमें से P कॉमन निकाल लेते हैं, देन P 112 square equal to 12544 upon 10000 minus P minus 1
minus 24 upon 100 equal to 72. And this implies P 12544 100 10,000 LCM ले लिया minus 1000 minus 2400 equal to 72. And this gives P 144 upon 10000 equal to 72. This implies P equal to 72 into 10,000 upon 144, and this gives P equal to rupees 5,000. So this is our answer. P हमारा क्या आ जाएगा 5,000. Now example number 3. If the compound interest on rupees 3,000 at a rate of 12% per annum for 12 months when interest is compounded half yearly. यहाँ पर ये हाफ ईयरली इम्पॉर्टेंट है, इसके हिसाब से हमारी चीज़ें बदल जाएंगी. प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 3,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है जब हाफ ईयरली हो, तो 6% हाफ ईयरली. एंड टाइम हमारे पास 12 मंथ्स है, मीन्स 1 ईयर. तो जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो इन दिस केस टाइम हमारे पास डबल हो जाएगा, मीन्स 24 मंथ्स. डबल हो गया 24 मंथ्स और 2 ईयर्स. जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तब जब भी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, ये हाफ हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम डबल हो जाएगा. ओके, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हमें मालूम है P1 प्लस R अपॉन 100 T minus P. This is the formula. Now substitute all the values, so we get compound interest equal to 3,000 1 plus 6 upon 100 time 2 and 3,000, and this is equal to, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से 3 2 से कैंसिल कर देंगे 50. अब इसमें से 3,000 कॉमन निकालने, तो देन वी हैव 3,053 upon 50 whole square minus 1, and this gives 3,053 into 53, 50 into 50 LCM minus 50 into 50, and this gives 3,000. ये हमारे पास आ जाएगा 2,809 2,500 upon 2,500, and this is equal to 3,000 into 309 upon 2,500. 2 0 से 2 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 times and 6 times, and this gives 1854 upon 5 equal to 370.80. So compound interest, hence compound interest equal to rupees 370.80. Now next one, example number 4. Find the compound interest on rupees 15,000 for 6 months at 12% per annum compounded quarterly. अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हाफ ईयरली कंपाउंडेड था, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दिया था और टाइम डबल कर दिया था. अब कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कर देंगे
1/4 और ये कर देंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हम 4 टाइम्स कर देंगे। तो हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू आ जाएगा ₹1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 1/4 मीन्स 12/4% इक्वल टू 3%। एंड टाइम, टाइम इक्वल टू कितना है 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स इंटू 4, और इसको हम लिख सकते हैं 6/12 इंटू 4 ईयर्स। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 2, इट्स मीन 2 ईयर्स। तो टाइम 2 ईयर्स हो गए। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, हमने रखा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 T माइनस प्रिंसिपल। Now this gives 15,000, 103/100 square minus 15,000। 15,000 कॉमन निकाल लेंगे तो 15,000 103 इंटू 103/100 इंटू 100 minus 1, and this gives 1500, 100 into 100 LCM, 103 into 103 minus 100 into 100। ये ऊपर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी से भी खोल सकते हैं और स्क्वायर करके भी। तो हमने a माइनस बी और a प्लस बी से किया, तो 103 प्लस 100 हो जाएगा 203, एंड 103 माइनस 100 हो जाएगा 3 ओनली। 100 इंटू 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो और कैंसिल हो गया, एंड वी हैव, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 203 इंटू 3, हमारे पास आ जाएगा 9135/10, एंड दिस गिव्स 913.50। इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ₹913.50, एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें ध्यान रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कंपाउंडेड हो रहा है, हाफ ईयरली, एनुअली या क्वार्टरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। Now example number 5. If a sum on CI becomes 2 times in 6 years, then with same rate of interest rate, in how much time the sum will become 8 times? So here let principal equal to P, rate equal to R% per annum. Now according to question, सम को हम अमाउंट भी बोल सकते हैं, ये अमाउंट है, अमाउंट। तो अमाउंट 2 टाइम्स होता है, मीन्स 2P इक्वल टू P 1 प्लस R/100 6 ईयर्स में। T की जगह 6 लिख दिया, यहाँ से P से P कैंसिल हो गया। दिस गिव्स 2 इक्वल टू 1 प्लस R/100 power 6, and this is equation number 1. Now with the same rate of interest, in how much time sum will becomes 8 times? Let after T years, let after n years, let after n years sum will become 8 times. So it means 8P equal to P 1 plus R/100 power n, n years बाद sum 8 times हो जाता है, P से P cancel, and this gives 8 1 plus R/100 n, और this gives 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस R/100
100 power n, and this is equation number second. अब इक्वेशन नंबर 1 से 2 की वैल्यू थर्ड में रख दें. देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 from equation number 1 in equation number 2. We get 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 106 और 3 है यहाँ पर पहले से इस पे इंटू 3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, and this gives 1 plus r upon 100 power 18 equal to 1 plus r upon 100 n. Compare both the sides of the equation. This gives n equal to 18. It means आंसर हमारा क्या आ जाएगा आफ्टर 18 ईयर्स. तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 18 ईयर्स. मीन्स आफ्टर 18 ईयर्स amount will be 8 times. Example number 6. A sum of rupees 1 lakh is borrowed at 10% per annum compounded annually, which is paid back in 3 equal annual installment. What is the amount of each installment? So let each installment equal to rupees x. So according to question, 1 lakh equal to x upon 1 plus 10 upon 100 plus x upon 1 plus 10 upon 100 power 2 plus x upon 1 plus 100 1 plus 10 upon 100 power 3, and this gives 1 lakh equal to x upon एक ज़ीरो से ये ज़ीरो सब कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 10 प्लस x upon 11 upon 10 square plus x upon 11 upon 10 cube, and this gives 1 lakh equal to x सब में से कॉमन निकाल लें. x और हम कॉमन निकाल लेते हैं 11 अपॉन 10 अपॉन में है तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 10/11 और ये सब रिवर्स हो जाएंगे तो ये 1 प्लस 10/11 प्लस 10/11 स्क्वायर ये हमारे पास आ गया. एंड नाउ दिस गिव्स 10000 इक्वल टू x इंटू 10 अपॉन 11. एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 11 ये आ जाएगा 121 प्लस 110 प्लस 100, एंड दिस गिव्स 1 lakh equal to x into 10 upon 11 into 313 upon 11 into 11. This gives एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. दिस गिव्स x इक्वल टू 10000 इंटू 1331 upon 331, and this gives x equal to 40211.48. So therefore hence each installment equal to rupees 40,211.48.
This is our answer. Now example number 7th. The population of a city is 4,40,000. If the annual birth rate and the annual death rate are 5% and 4% respectively, then calculate the population of the city after 2 years. तो यहाँ पर हमको प्रिंसिपल इक्वल टू दिया हुआ है 4,40,000 एंड टाइम इक्वल टू 2 years है. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बर्थ रेट है और 4% डेथ रेट है. देयरफॉर ईयरली इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज 1%. तो ईयरली इंक्रीज in the population equal to 1%. इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1% आ गया. सो हमें अमाउंट निकालना है. एक तरह से जो अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है, तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी, तो अमाउंट वाला पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years हमें ये कैलकुलेट करना है. तो हम लिखेंगे अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टी. ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें. सो दिस इज इक्वल टू 4,40,000 1 प्लस 1 अपॉन 100 टाइम 2 years. And this gives 4,40,000 into 101 upon 100 square. This gives 4,40,000 into 101 into 101 upon 100 into 100. ज़ीरो से ये सारे ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड वी हैव 44 इंटू 10201 इक्वल टू 44844. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, population after 2 years equal to 4,48,844 and this is our answer. तो पॉपुलेशन के केस में भी ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला काम आता है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 8. अ पर्सन lend out a certain sum on SI and the same sum on CI at a certain rate of interest per annum. He noticed that the ratio between the difference of CI and SI of 3 years and that of 2 years is 25:8. Find the rate of interest per annum. So let principal equal to rupees P and rate of interest per annum equal to R% per annum. Now according to question, difference of CI compound interest and simple interest for 2 years कितना हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस पी. ये तो सी आई हो गया माइनस एस आई पी टी आर पी इंटू आर इंटू टी टाइम 2 years है अपॉन 100. इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा पी. इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 10⁴ प्लस 2r अपॉन 100 माइनस ये तो ये हो गया माइनस पी माइनस 2pr अपॉन 100.
एंड इसको हमने पी फर्स्ट वाले ब्रैकेट को पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा पी प्लस पी आर स्क्वायर अपॉन 10⁻⁴ प्लस 2r अपॉन 100 माइनस 2p, यहाँ पे p मल्टीप्लाई हो जाएगा 2pr अपॉन 100। इस p से ये p कैंसिल, 2pr अपॉन 100 से 2pr कैंसिल, तो ये हमारे पास रह जाएगा pr स्क्वायर अपॉन 10⁻⁴। तो ये तो हमारे पास 2 साल का डिफरेंस आ गया। नाउ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 years, 3 साल के लिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 100 टाइम T माइनस P, ये तो हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस सिंपल इंटरेस्ट PR T 3 है अपॉन 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 10⁻⁴ इंटू 300 प्लस R अपॉन 100, ये हमारे पास आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का रेशो 3 years वाला और 2 years वाले का रेशो 25:8 है, तो 3 years का कितना है हमारे पास डिफरेंस, PR स्क्वायर अपॉन 10⁻⁴ 300 प्लस R अपॉन 100, और 2 years वाला कितना है हमारे पास, PR स्क्वायर अपॉन 10⁻⁴, ये 2 years वाला ये रहा, एंड दिस इज इक्वल टू 25/8, 25/8। PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, दिस गिव्स 300 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू 25/8। दिस इम्प्लाइज 300 प्लस R इक्वल टू 2500 अपॉन 8। This gives R equal to 2500 upon 8 minus 300. This gives R equal to 8 LCM 2500 minus 2400, and this gives R equal to 100 upon 8. This gives R equal to 12 whole 1/2%, and this is our answer। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया 12 whole 1/2%। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मैथ्स टेक्स a lot of practice to get it right. So now I am going to give you some practice problems. Do them carefully. एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड इस कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही और भी आपके कोर्स से रिलेटेड जो वीडियोस बना है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन, and if you have any problem related to this topic, please comment below. I will be uploading next video soon. Please like and subscribe and click the bell icon to get the new videos update. Thank you.